السلام علیکم، آداب، میں خضر یافی اور آپ دیکھ رہے ہیں ANN اردو خبرنامہ۔ خبرنامے کی شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائن سے۔ TGSRTC میں 3038 ملازمتوں کی بھرتی کے لیے جاری کیا جائے گا جلد نوٹیفیکیشن۔ نئے بسوں کی خریداری کے بعد ملازمتوں کی بھرتی کی کارروائی۔ 44 سال قبل عادل آباد کے اندرونی علاقے میں پولیس فائرنگ میں جاں بحق ہونے والے قبائلیوں کو یاد کرنے کے لیے ریاستی حکومت نے اتوار کو پہلی بار ایک یادگاری پروگرام کا کیا انعقاد۔ ریاستی وزیر ستکا کی شرکت۔ آصف آباد ضلع میں فتنوں کے سدباب کے لیے مجلس تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ کی اثر نو تشکیل۔ متفقہ و متحدہ طور پر مولانا سید ہارون رشید قاسمی صدر، حافظ سید منیر احمد اشاعتی، مولانا شیخ معراج ملی نائب صدور اور حافظ محمد ساجد خان جنرل سیکریٹری کے علاوہ حافظ میر طاہر علی ہاشمی قازین منتخب۔ ضرورت مندوں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار ہوں، کندی سرواس ریڈی نے طبی علاج کے لیے 50,000 کا عطیہ دینے کے موقع پر کیا اظہار خیال۔ عادل آباد ضلع میں 2 آگ لگنے کے واقعات، آگ بجھانے والے عملے نے کی مداخلت، بھاری مالی نقصانات کی کیے جا رہے ہیں امکانات۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے اعلان کیا ہے کہ TGSRTC میں 3038 خالی آسامیوں کے لیے نوٹیفیکیشن جلد جاری کیا جائے گا۔ ان آسامیوں کے لیے حکومت نے پہلے ہی اجازت دے دی ہے اور نوٹیفیکیشن جاری ہونے اور نئے بسوں کی خریداری کے بعد ملازمتوں کی بھرتی کا عمل بھی جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ ریاستی وزیر ستکا نے کہا کہ جل جنگل زمین کے نعرے کے ساتھ ریاست کی کانگریس حکومت قبائلیوں کی ترقی کے لیے پختہ عزم رکھتی ہے اور پولیس کی فائرنگ میں جاں بحق ہونے والے خاندانوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری حکومت پر ہے۔ 44 سال قبل اندرابلی پولیس فائرنگ میں جاں بحق ہونے والے قبائلیوں کو یاد کرنے کے لیے ریاستی حکومت نے اتوار کو پہلی مرتبہ ایک یادگاری پروگرام کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر وزیر ستکا نے شہداء کے مینار پر جا کر خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر نے اس موقع پر فائرنگ میں جاں بحق ہونے والے 15 خاندانوں کو فی خاندان 10 لاکھ روپے مالی مدد فراہم کی۔ اس کے علاوہ ٹریکٹرز اسکیم کے تحت ٹریکٹر، زرعی مشینری اور خود روزگار یونٹس فراہم کیے گئے۔ ریاستی وزیر ستکا نے کہا کہ حکومت قبائلیوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ ان کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ یادگاری پروگرام میں وزیر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اندرابلی سے ہی اپنا انقلاب شروع کیا تھا اور اقتدار میں آ کر عوام کی خدمت کی۔ وزیر نے مزید کہا کہ پولیس کی فائرنگ میں ہلاک ہونے والے خاندانوں کی مدد کے علاوہ ریاست کے دور دراز قبائلی علاقوں میں ترقی اور فلاح و بہبود کو ترجیح دی جائے گی۔
మరి ఈ రోజు పాల్గొని ఆ రోజు భూమి కోసం భుక్తి కోసం పోరాటం చేసిర్రు. వారి పోరాటాల ఫలితంగానే మరి ఆదివాసులకు కొన్ని చట్టాలు, కొన్ని జీవోలు, కొన్ని సంక్షేమ పథకాలు కూడా మనం సాధించుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి ఇన్నేళ్ల తర్వాత ఈ రోజు అధికారికంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఇక్కడ ఐటీడీఏ పీఓ గారు, కలెక్టర్ గారు, ఎస్పీ గారు, ఇతర అధికారులందరూ కూడా ఈ యొక్క ఏర్పాట్లు నిర్వహించి స్వేచ్ఛగా మా కోసం మరణించినటువంటి ఆదివాసీ అమరవీరులకు నివాళులర్పించుకునేటువంటి గొప్ప స్వేచ్ఛగా ఈ రోజు మేము భావిస్తా ఉన్నాం. ఆనాటి కాల్పుల్లో మరణించినటువంటి కుటుంబాలకు కూడా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ఇండ్లు గాని, ఇతర ట్రైకార్ లోన్లు గాని, ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు కూడా కల్పించడం జరుగుతా ఉందని తెలియజేస్తూ, మరి పత్రికా మీడియా సోదరులు కూడా ఎప్పటికీ ఈ యొక్క అమరవీరుల యొక్క గొప్పతనాన్ని తరతరాలుగా చాటుతున్నందుకు మీ అందరికీ, మీ యాజమాన్యాలకు కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు, ధన్యవాదాలు. आसिफाबाद जिला मरकज़ में मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ट्रस्ट की असर-ए-नौ तश्कील मेहमान ख़ुसूसी मुफ्ती सैयद अकबर कासमी सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ज़िला निज़ामाबाद की ज़ेर सरपरस्ती में अमल में लाई गई। इस सिलसिले में बमक़ाम मस्जिद उस्मानिया कोट रोड आसिफाबाद में एक अहम मुशावरती इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इजलास में हज़रत मौलाना अंसारुल्लाह कासमी ऑर्गेनाइज़र मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ट्रस्ट तेलंगाना व आंध्र प्रदेश, मौलाना वजीउद्दीन कासमी मुबल्लिग़ मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ट्रस्ट तेलंगाना व आंध्र प्रदेश, मौलाना सैयद इकरामुद्दीन मिफ्ताही के अलावा मुफ्ती अब्दुल मोइज़ शामजी सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ट्रस्ट मेटपल्ली की ज़ेर निगरानी में मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ज़िला आसिफाबाद शाख रियासती मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ट्रस्ट तेलंगाना व आंध्रा का क़याम अमल में लाया गया। इस मुशावरती इजलास में मजलिस ख़त्म नबुव्वत के ज़िम्मेदारान ज़िला आसिफाबाद के असर-ए-नौ कमेटी की तश्कील अमल में लाई गई। आसिफाबाद ज़िले के जमी उलमा, हुफ़्फ़ाज़ व खुतबा हज़रात समेत जैनूर, सिरपुर, कागज़नगर और मक़ाम आसिफाबाद की मुत्तफ़क़ा राय मशवरा और सभी की रजामंदी पर मौलाना सैयद हारून रशीद कासमी को बहैसियत सदर मुंतखब किया गया। इसके अलावा हाफिज़ सैयद मुनीर अहमद इशाती, मौलाना शेख मेराज मिल्ली को नायब सदूर मुंतखब किया गया, जबकि हाफिज़ वक़ारी मोहम्मद साजिद ख़ान को जनरल सेक्रेटरी, इसी तरह मौलाना अहमद मुबीन कासमी, मौलाना मुनीर अशरफ, शहबाज अली हाशमी असदी को जॉइंट सेक्रेटरीज़ मुंतखब किया गया, जबकि हाफिज़ वक़ारी मीर ताहिर अली हाशमी फ़लाही को ख़ाज़िन मुंतखब किया गया। इसी तरह आसिफाबाद ज़िले के जमी उलमा किराम, हुफ़्फ़ाज़ अज़ाम, अइम्मा मसाजिद व खुतबा हज़रात अराकीन आमिला में शामिल रहेंगे। फितने चूँकि बहुत ताकतवर हैं, आज के दौर में फितनों और गुमराहियों की बारिश हो रही है, तो इनसे रास्तुस क्या है, वो तखस्सुस के इखलास, इसलिए अपने को सब को नए पुराने जो मुंतखब हुए जो नए सब कुछ है एक तखस्सुस में, तो अपने को आगे रहे तखस्सुस के इखलास।
तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वजह अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। आज रियासती मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़ेर एहतमाम ज़िला आसिफ़ाबाद की शाख मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का क़याम अमल में आया है। इसके क़याम के लिए तश्कील के लिए बतौर निगरान हज़रत मौलाना अंसारुल्लाह साहब आल बरकातुहुम, हज़रत मौलाना वजीरुद्दीन साहब दामद बरकातुहुम रियासती मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का तशरीफ़ लाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस ज़िले के उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम, आइम्माए मसाजिद की मौजूदगी में सबके इत्तेफ़ाक़ से, राय मशवरे से ये ज़िले शाख तश्कील पाई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहद कबूल फरमाए। आप सभी अहबाब से जो उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम, आइम्माए मसाजिद किसी वजह से आज के इस अहम मुशावरत इजलास में शरीक नहीं हो सके, वो भी दुआ फरमाएँ और जो मुंतखब हुए जिस मनसब ओहदे के लिए उनके लिए दुआ भी करें और उनके मुआविन बनकर उनका साथ दें, अपनी हिमायत नुसरत पेश करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे इंतखाबी हलक़े में अगर किसी को भी कोई मुश्किल पेश आती है तो मैं हमेशा उनके साथ हूँ। इन ख़यालात का इजहार आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने किया और यही वजह है कि हलक़े के लोग कंदी श्रीनिवास रेड्डी की तारीफ़ करते हैं। मवाला मंडल के साबिक़ ZPTC राजेश्वर की बीमारी के बारे में जानकर जो अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने हफ्ते के रोज़ अपने कैंप ऑफिस प्रजा सेवा भवन में उनके इलाज के लिए 50,000 रुपये की माली इमदाद फराहम की, जो उन्होंने राजेश्वर के करीबी साथियों माला संगम के सदर रमेश राघवेंद्र के हवाले की। इन्होंने दुआ की कि वह जल्द सेहतयाब हो जाए। आदिलाबाद ज़िले के दही मंडल में रामपुर के नज़दीक कौमी शाहरा के करीब एक बंद सोया मिल में कचरे में आग लग गई। गर्मी की शिद्दत के साथ ही आग आसपास के इलाकों में तेज़ी के साथ फैल गई। मकामी लोगों ने फौरी तौर पर फायर डिपार्टमेंट के एहलकारों की इत्तला दी। फायर फाइटर्स ने फायर इंजन की मदद से आग पर काबू पाने में अहम रोल अदा किया। जानी नुकसान की तो कोई इत्तला नहीं है, लेकिन भारी माली नुकसान का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। माल तो पहले माले के जूम करो। मुँह पर मार्क्स निकालो। यही व्यक्ति है जो आग लगा है। हाँ, भी माचिस मारो देश में। पाइप पिप्पू स्टार्टिंग लगे नहीं हाँ ठीक। उतारे बाबू। हाँ
रोल कैमरा एक्शन। Up. तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू की 75वीं यौम पैदाइश की तकरीबात आदिलाबाद में बड़ी धूमधाम से मनाई गई। ज़िले के तेलुगु देशम पार्टी के रहनुमाओं और उनके हामियों ने पार्टी के दफ्तर में केक काट कर जश्न मनाया। रहनुमाओं ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू एक विजनरी कायद हैं और उन्होंने अपोजिशन लीडर और वज़ीर आला के तौर पर अपनी अहमियत साबित की है। इन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर आला के तौर पर रियासत के अवाम और पार्टी के सरबराह के तौर पर तेलुगु देशम पार्टी के लिए उनकी खिदमत नाकाबिल फरामोश है। रहनुमाओं ने चंद्रबाबू नायडू की क़ियादत की भरपूर सताइश की। తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత 75 సంవత్సరాల జన్మదిన సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమం జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఆయన చేసినటువంటి మేలు ప్రపంచంలోనే ఒక ప్రఖ్యాతిగాంచినటువంటి మేధావులుగా ఉన్నాడు. ఎందుకంటే తెలుగు ప్రజల యొక్క ఆశాజ్యోతి. ఆయన చూపిన మార్గం మనందరికీ అభినందనీయం. ఎందుకంటే అభివృద్ధి అంటే ఏంటి, విజన్ అంటే ఏంటి అన్న యొక్క ఉన్న పద్ధతిని ఆయన ఈనాడు వ్యక్తపరిచి భారతదేశంలో ఒక గొప్ప నాయకుడిగా ఎదిగి పొందాడు. ఆయన చేసినటువంటి సేవలో అభివృద్ధి, మరి హైదరాబాద్లో ఇంత అభివృద్ధి జరిగిందంటే ఆయన యొక్క చొరవ వల్లనే. ఈనాడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఆయన యొక్క సహకారంతో, ఆయన యొక్క విజన్తో ఈనాడు డెవలప్మెంట్ కావడం జరుగుతుంది. కావున ఇక ముందు ఎన్నో పుట్టినరోజులు జరుపుకోవాలని మరి ఆ యొక్క భగవంతుని మేమందరం తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున ప్రార్థిస్తూ జై తెలుగు, జై చంద్రబాబు. हैदराबाद के दारुस्सलाम ग्राउंड में हफ्ते को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ एक बड़ा एहतजाजी जलसे आम मुनक़्क़िद किया गया। इस जलसे की सदारत बोर्ड के सदर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने की, जिसमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की। इसके अलावा तेलंगाना भर से हज़ारों मुसलमानों ने भी शिरकत की। आदिलाबाद से ज़िला सदर जमीयत उलमा जनाब हाफिज़ अबूकर हामिद, सदर तंजीम आइम्मा व मुअज़्ज़िरीन हाफिज़ मोहम्मद मंजूर अहमद, हाफिज़ शेख अहमद, मौलाना रहीम ज़ाकिर, हाफिज़ जवाद व दीगर ने शिरकत की। इसके अलावा भैंसा निर्मल से भी उलमा किराम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अपने सदारती खिताब में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पेश करदा वक्फ तरमीमी बिल को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए कहा कि यह बिल मुसलमानों के मजहबी, समाजी और क़ानूनी हुकूक़ पर हमला है। इन्होंने कहा कि इस बिल के तहत वक्फ इमलाक की रजिस्ट्रेशन और इंतज़ाम में कई पेचीदा शराइत आयद की गई हैं, जिससे आम मुसलमानों के लिए वक्फ करना मुश्किल हो जाएगा। इन्होंने मज़ीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट से अभी कोई राहत नहीं मिली है, इसलिए हमें अपनी जद्दोजहद को जारी रखना होगा। मौलाना ने पार्लियामेंट में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और दीगर जमातों के अरकान पार्लियामेंट की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ पेश की गई नुमाइंदगी पर उनका शुक्रिया अदा किया। इन्होंने तमाम मुसलमानों से अपील की कि वह इस बिल के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होकर जदोजहद जारी रखें और हुकूमत पर दबाव डालें कि वह इस बिल को वापस लें। था जिसके पास बड़ी खूबसूरत बांग देने वाला एक मुर्ग था, वो मुर्ग की अच्छी परवरिश करता, लेकिन अचानक उसकी नीयत खराब हो। Lord Shiva of South, especially Tamil Nadu. Lord Shiva of South. This is the first line. Lord Shiva of the South. लॉर्ड शिवा जुनूबी हिंद में कहा जाता है। Hail
Lord Shiva of South Tamil Nadu. लॉर्ड शिवा की तारीफ होती है जुनूबी हिंद में. எந்நாட்டவருக்கும் இறைவா போற்றி. Hail God of rest of the part of the country. Yeah, I'll tell you. करूंगा, दो बातें कहना चाहूंगा. सबसे पहली बात यह है कि हमारे आकाए दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल मुस्लिम मन सलिम अन्नास मिन लिसानिही व यदिही. मुसलमान वो है जिससे आसिफाबाद ज़िले के मरकज़ी इलाके में अम्बेडकर चौक पर समाजी कारकुन उबैद बिन याह्या तारीख़ की निगरानी में लायंस क्लब के ज़ेर एहतिमाम अरसे दराज से मौसम गर्मा की मुनासिबत से राहगीरों में अम्बेल की तकसीम का सिलसिला जारी है. अम्बेल जो एक ठंडा मशरूब समझा जाता है, आसिफाबाद DCC सदर विश्व प्रसाद द्राव और आसिफाबाद के साबिक़ MLA आतरम सक्कू ने उबैद बिन याह्या तारीख़ की तारीफ़ की. हफ्ते को आसिफाबाद शहर में अम्बेल तकसीम करने की तकरीब का आगाज़ किया गया. तकसीम के बाद अहम मेहमानों ने कहा कि हर साल अम्बेल मरकज़ कायम करके पैदल चलने वालों और शहरियों की प्यास बुझाई जाती है और इस तरह अम्बेल की तकसीम की खिदमत को इन्होंने सराहा. ज़िला आदिलाबाद फायर ऑफिसर सुरेश कुमार ने कहा कि फायर फाइटर्स के तौर पर खिदमत अंजाम देना और लोगों की जान व माल को आग के हादसात से बचाना फ़ख्र की बात है. इन्होंने शहर के NTR चौक पर वाक़े डिस्ट्रिक्ट फायर डिपार्टमेंट ऑफिस में फायर वीक के इख्तिताम के मौके पर मुतअद्दिद एक प्रोग्रामों में शिरकत की. इन्होंने कहा कि इस हफ्ते के दौरान लोगों को आग लगने के हादसात से बचने के लिए उठाए जाने वाले एहतियाती तदाबीर और इमरजेंसी के दौरान एहतियाती तदाबीर से आगाह किया गया. हमने हादसे में हलाक होने वाले फायर फाइटर्स की खिदमत को भी याद किया और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया. सीनियर असिस्टेंट ఏప్రిల్ 14 నుండి ఏప్రిల్ 20 వరకు నిర్వహించిన ఈ ప్రోగ్రాం నడవాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. इधर आओ थोड़ा. सूरत दिखा जरा. గారికి ఏపో గారు మరి టేబుల్ మీద బరాబర్ తనవాలి. ఇవన్నీ టేబుల్ మీద పెట్టండి. నా టేబుల్ మీద జయత్రం చౌకకు పేర్లు చదివే. మోహన్ రెడ్డి సార్ గారు స్టేజ్ పైకి రాగలరు. ఎం స్వామి ఎంత మరి ఏమనుకోడు బాబు మంచోడు. సార్ సార్ సురేష్ సార్ ఆ చాలా పట్టుకోండి. జయత్రం ఎక్కడైతే మానవులు ఉంటున్నారో లేదా చెట్టులు ఉంటున్నాయో ఫైర్ కి ఉండే పదార్థాలు ఏముంటున్నాయో అది ఎక్కడైనా మనకి ఫైర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా 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 ఎక్కువ. ఈ శాఖలోకి నేను వచ్చినందుకు చాలా చాలా గర్వపడుతున్నాను. అంటే బిఏ ఫైర్ ఫైటర్గా
నాకు ఇది మనకు ఒక అదృష్టం కింద కూడా భావించాలి. ఇంకా మనకి విషయానికి వస్తే మనకు 1944 నుంచి అనాది నుంచి వస్తుంది ఏప్రిల్ 14 to 20th వరకు. దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటే మనకి ఆ టైంలో ఎవరైతే ప్రాణాలు కోల్పోయారో వాళ్ళకి నివాళులు అర్పిస్తూ ప్రజెంట్ కూడా మనకి ప్రతి సంవత్సరం విధి నిర్వహణలో ఎవరో ఒకరు ప్రాణాలు కోల్పోతుంటారు. అంటే వాళ్ళకి ఆ టైంలోని అంటే అంత ఫైర్ అవుతుంది, మనం ఆ ఫైర్ ఆర్పడానికనే మనం చూస్తూ ఉండటం. బిల్డింగ్లోకి వెళ్ళిపోతే బిల్డింగ్ కొలాప్స్ అయిపోవచ్చు. యాజ్ ఏ ఫైర్ ఆఫీసర్గా కూడా 93 బ్యాచ్ ఒక ఫైర్ ఆఫీసర్ కూడా చనిపోయారు. అంటే మా సీనియర్ ఆఫీసర్ ఫైర్ అవ్వే అట్లాగా తన విధి నిర్వహణలో ప్రాణాలను కూడా లెక్క చేయకుండా ఫైర్ ఫైటర్స్ చాలా కష్టపడుతుంటారు. సో మన అగ్నిమాపక శాఖకి ఈ రోజు ఒక పండగ లాంటిది. ఈ ఏప్రిల్ 14 నుంచి 20వ తారీఖు ఉండేది వారసులు ఏదైనా ఒక పండగలాగా మీకు రైట్ టు మీకు ఒక అది హక్కు. మీకు రిటైర్ అయిన వాళ్ళకి కానీ ఉన్న వాళ్ళకి కానీ నిన్న మా స్టాఫ్ చేశారు రేపు ప్రోగ్రామ్ చేయాలంటే, కానీ వీళ్ళు చెప్పారంటే మీకు రైట్ ఉంది, అది ఈ రోజు చెయ్యాలి. రిటైర్డ్ పర్సన్స్ కూడా నేను చెప్తున్నాను మీకు ఈ రోజు రైట్ అంటే 14 నుంచి 20th వరకు మీరు దగ్గరలో ఉన్న ఫైర్ స్టేషన్కి వెళ్ళండి, లేదా డిఎఫ్ ఆఫీస్కి వెళ్ళండి, వెళ్ళి మీ అనుభవాలు పెంచుకోండి. 14 నుంచి 20 తారీఖు లోపల మీరు అంటే ఇప్పుడున్న యూత్కి చెప్తున్నా అంటే ఇంచుమించు 3-4 जनरेशंस. हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है. कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी है. इस कैम्प से रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस्तेफादा कर रहे हैं. పేదల గడపన పొద్దునువై వెలుగులు పంచుతవో, ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో, పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో, సాయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో, బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు, ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న, ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్న, ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న, గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. బంధం కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం, బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం, బంధము కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులు అమ్మతనం, బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం, పేదల గుండెకు సప్పుడువే మా సీనన్న నిరుపేదల. आदिलाबाद ज़िले के बेला मंडल में कल रात आग लगने का वाक़या पेश आया. बेला मंडल के एक गांव में रात के वक्त शॉर्ट सर्किट से किराना की दुकान में सारा सामान तबाह हो गया. उसके अलावा वो आग दुकान के मालिक दयाकर के जिस्म तक भी पहुंच गई थी और वो 20% झुलस गया. अहल खाना ने एम्बुलेंस को
बुलाया और उसे आदिलाबाद रिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। मामले की इत्तला मिलते ही ब्लॉक कांग्रेस सदर संजय गुंडावार फौरन गांव पहुंचे और किराना की दुकान का मुआयना किया। इन्होंने घर वालों को तसल्ली दी और उनसे नुकसान की हद के बारे में दरियाफ्त किया। पुलिस को भी फौरी इत्तला दी गई। बेला ASI ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। मुतासिर अफराद ख़ानदान का कहना है कि 2 लाख रुपये तक के माली नुकसान हुआ है। इन्होंने दावा किया कि 2 लाख का माली नुकसान हुआ है। हुकूमत से इमदाद की अपील की। మొత్తం ఒకటేసారి అడ్డేది సార్. మొత్తం అంతా పైన వచ్చి అది ప్లాస్టిక్ మొత్తం ప్లాస్టికే ఉండే మొత్తం ఒకసారి ఇళ్ళ రాలే. 40% आदमी को ये लगा अभी रिंग्स में बेला मंडल मरकज़ में वाक़ ज़िलई पंचायत हाई स्कूल में 2002-2003 के मराठी मीडियम 10वीं जमात के साबिक़ तलबा का एक शानदार आत्मीय सेमिनार मुनक़िद किया गया। 22 साल बाद साबिक़ तलबा एक जगह जमा होकर एक दूसरे की खैरियत दरियाफ़्त की और अपने बचपन की यादों को ताज़ा किया। स्कूल और उसके इर्द गिर्द के माहौल को देख कर वो जज्बाती हो गए। इन्होंने अपने असातिज़ा के साथ अपनी यादों को शेयर किया। इस मौके पर असातिज़ा ने कहा कि उन दिनों में सिर्फ़ महदूद सहूलतें ही दस्तयाब थी, मगर वो तलबा जो उन हालात में पढ़ाई कर रहे थे आज मुख्तलिफ़ आला अहदों पर फ़ाइज़ है। ये उनके लिए फ़ख्र की बात है। असातिज़ा ने यह भी कहा कि 22 साल बाद भी उन्हें याद करके इज़्ज़त देना एक खुशी की बात है। असातिज़ा की दी हुई तरबियत और तालीम की बदौलत वो आज मुख्तलिफ़ सतहों पर कामयाब हैं। इस मुलाकात को एक खुशगवार याद के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। एक गुरुवंदनाने सुरुवात करूया। गुरुर ब्रह्मा आई में कभी पूर्वाई में होती थी रोज। एक साइड न वा सर्वांनी काय हां ठीक आहे या पहिला प्रकार सुरुवात कर। तेरा नसीब था फोटो पे रहता था। 22 वर्षानंतरचा हा प्रथमतः माझा परिचय देतो। नंतर तू ही मेरा यार बस तू ही मेरा प्यार तेरे तुम्हारी दुनिया में सारी तेरी यारी तेरी यारी तेरी यारी तेरी संमेलन 2002 ते 2003 ची आमची 10वीची मराठी मीडियमची बॅच आहे। या पूर्व विद्यार्थी स्नेह संमेलनामागे पूर्व गुरुजनांचा आदर सत्कार व सन्मान सोहळा या ठिकाणी आम्ही आयोजित केलेला आहे। आमच्या ग्रुपमध्ये म्हणजे 10वीच्या बॅचमध्ये जेवढे विद्यार्थी होते त्या सर्वांना फोन लावून परस्पर भेटून आज या कार्यक्रमाचं आयोजन आम्ही केलेलं आहे। तब्बल 22 वर्ष ते 23 वर्षानंतर आम्ही सर्व विद्यार्थी व विद्यार्थिनी आणि शिक्षक वृंद एकत्रित आलेला आहे। त्या अनुषंगाने
आज शब्दांनी सांगू शकत नाही एवढा आनंद या ठिकाणी झालेला आहे आणि तो तुम्हाला प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर दिसून येत आहे. 22 वर्षानंतर आज आम्ही सगळेजण पहिली वेळा भेटले, म्हणजे त्यातले दोघं तिघच होते भेटलेले, बाकी कोणीच नाही. सरांसोबत मात्र आजच भेटले. इतक्या वर्ष 23 वर्ष झाल्यानंतर त्यामुळे खूप खुशी होत आहे. सरांना पण आम्हाला भेटून आम्हाला सरांना भेटल्यानं खूप खुशी वाटत आहे. अभी फिर ये आत्मसम्मेलन नाही. कैसा महसूस? आज सगळ्याला भेटून खूप आनंद वाटत आहे. इतकेच आम्हाला 10वीचे जसं आहे ना तसं म्हणजे आम्ही क्लासमध्ये आहे असंच वाटत आहे आम्हाला. हिला बघून खूप आनंद होत आहे. सगळ्यांना भेटल्यानं आम्हाला वाटलं नाही की आम्ही भेटणार आहोत म्हणून, पण आज भेटल्यानं खूप आनंद वाटत आहे. सांगू शकत नाही मी तितका आनंद वाटत आहे. धन्यवाद. खबरनामे के अख्तिताम से कबल आइए एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। TJSRTC में 3038 मुलाजिमतों की भर्ती के लिए जारी किया जाएगा जल्द नोटिफिकेशन। नए बसों की खरीदारी के बाद मुलाजिमतों की भर्ती की कार्रवाई। 44 साल कबल आदिलाबाद के नरवेली इलाके में पुलिस फायरिंग में जाँ बहक होने वाले कबायलियों को याद करने के लिए रियासती हुकूमत ने इतवार को पहली बार एक यादगारी प्रोग्राम का किया इनेकाद। रियासती वज़ीर सितक्का की शिरकत। आसिफाबाद ज़िले में फितनों के सद्देबाब के लिए मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़ुत्म नबूवत ट्रस्ट की असर नौ तश्कील। मुत्तफ़क़ा व मुत्तहिदा तौर पर मौलाना सैयद हारून रशीद क़ासमी सदर, हाफिज़ सैयद मुनीर अहमद इशाअती, मौलाना शेख मिअराज मिल्ली नायब सदूर और हाफिज़ मोहम्मद साजिद खान जनरल सेक्रेटरी के अलावा हाफिज़ मीर ताहिर अली हाशमी क़ाज़ी मुंतखब। ज़रूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने तिब्बी इलाज के लिए 50,000 का अतिया देने के मौके पर किया इजहार ख्याल। आदिलाबाद ज़िले में 2 आग लगने के वाक़यात, आग बुझाने वाले अमले ने की मुदाखलत, भारी माली नुकसानात की किए जा रहे हैं इम्कानात। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।